Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates. When it comes to safeguarding your child's health, staying informed is not just important, it's essential. Understanding the significance of DTP vaccines is a critical part of this responsibility. This awareness enables you to make decisions that can profoundly impact your child's well-being. In today's discussion, we delve into why it's so important for parents to be knowledgeable about these vaccines, focusing on the crucial role they play in protecting your child's future. So, by being informed, you empower yourself to take proactive steps to shield your child from serious health risks. Welcome everyone. I'm Dr. Soumya Saluja from TIP Media और आज हम प्रतिष्ठित स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर उन्मेष उपाध्याय के साथ बच्चों के लिए डीटीपी टीकों के महत्व पर चर्चा करेंगे, जो आपके बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा में इन टीकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में हमारा मार्गदर्शन करेंगे. Dr. Unmesh Upadhyay is a highly experienced consultant pediatrician who has been serving as the head of Vismay Childcare Hospital since 2010. With over a decade of dedicated service, Dr. Upadhyay has established himself as a trusted figure in pediatric healthcare in Ahmedabad. His extensive expertise in managing the specific needs of growing children has been instrumental in shaping the care provided at Vismay Childcare Hospital, where countless young lives have benefited from his guidance and treatment. Dr. Upadhyay's leadership extends beyond his hospital duties, as he currently holds the esteemed position of President of the Pediatric Association of Ahmedabad for the 2023-24 term. Sir's contributions to pediatric health are vast, including writing articles in newspapers to raise awareness among parents and about vaccination and childhood. This role highlights his commitment to advancing pediatric care and his influence in the medical community. In 2024, Sir became an ADVAC Fellow under Geneva University, further showcasing his dedication to enhancing his expertise in vaccinology and pediatric healthcare. Sir's dedication to the well-being of children and his proactive involvement in pediatric health initiatives make him a respected and valued leader in his field. तो आइए अब डॉक्टर उन्मेष उपाध्याय से ही समझते हैं DTP vaccine का महत्व. Dr. Unmesh Upadhyay, TIP Media welcomes you, sir. Thank you. Thank you for joining us today, sir. Sir, we all recognize that the importance of protecting our children's health by vaccines is very important, right? And तब भी बहुत सारे ऐसे parents हैं, they might still feel uncertain or apprehensive about vaccinations. So, in addressing these concerns, I'll start our discussion with the most fundamental question that what diseases does the DTP vaccine protect against? DTP vaccine किन diseases के against बच्चों को बचाता है and how do these diseases affect children? DTP vaccines basically 3 disease prevent करता है, मतलब diphtheria, tetanus and pertussis. Disease prevent करता है DTP vaccines. And diphtheria अगर कोई बच्चे को होता है तो उसमें बेसिकली सिवियर थ्रोट इन्फेक्शंस होता है, जो वाइट मेम्ब्रेन गले में हो जाती है. और दूसरा नेक स्वेलिंग, जो गले में सूजन, बाहर नेक स्वेलिंग हो जाता है, पूरा बुल नेक बोलते हैं, बुल नेक जैसा अपीयरेंस हो जाता है बच्चे के गले के आजू बाजू. और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग सीवियर केस में होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है. और दूसरा कई बार हार्ट फेलियर भी हो सकता है, अगर हृदय पर इफेक्ट होती है तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है. और दूसरा जो है टिटेनस, उसमें लॉक जो बोलते हैं, पूरा मुंह बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है. और मसल स्टिफनेस
पूरा बॉडी का मसल स्टिफ हो जाता है। और दूसरा जो है लॉक जो की वजह से नॉट एबल टू टेक फूड और लिक्विड्स, जो बच्चा है वो फूड लिक्विड्स ले नहीं पाता है। जी और दूसरा तीसरा जो है पर्टूसिस, जिसे जी काली खांसी कहते हैं, जी वो 6 वीक एज ए 6 वीक खांसी रहती है उसमें। और जी उसमें सिवियर कफिंग होता है। और वूप कफ जो एक आवाज आती है कफिंग करता है, तो वो वूप कफ बोलते हैं। और जी कई बार उसमें साथ में निमोनिया भी हो सकता है। जी तो ये मतलब तीनों डिसीज में ये सिम्टम्स है तीनों डिसीज का। जी जी सर। और अब एक थोड़े से कंफ्यूजन पर आते हैं। जैसे हमारे को दो वैक्सीन के बारे में समझ में आता है, दैट इज डीटीपी एंड डीटीएपी वैक्सीन। तो सर इन दोनों के बीच का फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीटीपी एंड डीटीएपी वैक्सीन? हाँ, बोथ जो है वो इनएक्टिवेटेड फील्ड वैक्सीन है, जी DTWP एंड DTAP। बट DTWP जो है वो होलसेल पर्टूसिस वैक्सीन है। जी उसमें जो पर्टूसिस एंटीजन यूज होता है उसका होल सेल, पूरा सेल यूज होता है जी एंटीजन। और ए सेलुलर पर्टूसिस वैक्सीन है, उसमें प्योरिफाइड यूज part जी of the pertussis antigen। एंड जी जो अभी वैक्सीन अवेलेबल है ए सेलुलर पर्टूसिस में, उसमें जी 2 या तो 3 कंपोनेंट या तो 5 कंपोनेंट वैक्सीन अवेलेबल है। जी उसमें पर्टूसिस टॉक्सॉइड मेन एंटीजन है, बाकी जी टमेटस, हीमोग्लोबिन प्रोटेक्टिन, ये सब अदर कंपोनेंट उसमें यूज होते हैं। जी तो जी ये सर। बेसिकली डिफरेंस है। ओके राइट। और सर डीटीएपी वैक्सीन आया ही क्यों था? कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि वैक्सीन डेवलपमेंट में हम श्योर कुछ मेजर माइलस्टोन्स रहे होंगे जिसकी वजह से डीटीएपी वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुआ है। सो कैन यू प्रोवाइड अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द डीटीएपी वैक्सीन? In US, some during 1990, during जी in US में some children have a side effect after wholesale pertussis vaccines. राइट So after that, there is a parents refuse for pertussis vaccines, and ओके vaccines hesitancy develop, and जी coverage is also low for wholesale pertussis vaccines. जी So after that, 1991, first acellular pertussis vaccine was introduced in USA. ओके राइट सर। और इन दोनों में से बेहतर वैक्सीन कौन सी है, डीटीपी या फिर डीटीएपी, और क्यों? विच वन इज बेटर? For immunity point of view, जी wholesale pertussis is better ओके than acellular pertussis vaccine. Uh, Wholesale, it's after primary immunization हम 3 डोज देते हैं बच्चे को लेस देन 1 ईयर में जी DTP वैक्सीन के, और एक बूस्टर देते हैं 1.5 ईयर में। जी तो 3+1 डोज के जो इम्यूनिटी देखे दोनों वैक्सीन की, तो उसमें होलसेल पर्टूसिस वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है, ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, वो जी 6 to 12 ईयर्स तक रहता है। ओके और ए सेलुलर पर्टूसिस वैक्सीन में इम्यूनिटी रनिंग लाइक कम हो जाए, एवरी ईयर 10% लेस होती है। सो जी प्रोटेक्शन अप टू 4 to 6 ईयर ओके आफ्टर ए सेलुलर पर्टूसिस वैक्सीन। दोनों वैक्सीन में इम्यूनिटी मतलब कम तो होती है आफ्टर मतलब 4 डोज एवरी ईयर, बट जी ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन लॉन्ग विथ होलसेल पर्टूसिस वैक्सीन। और ओके और दूसरा ये है कि होलसेल पर्टूसिस वैक्सीन है, वो प्रिवेंट डिसीज को तो प्रिवेंट करता ही है,
उसके साथ ट्रांसमिशन ऑफ जो डिसीज है, जो एक बच्चे को अगर परटूसिस होता है तो वो अपने सिबलिंग या स्कूल में किसी दूसरे बच्चे को जो ट्रांसमिट करता है वो जी अगर होलसेल परटूसिस वैक्सीन लिया होता है तो वो प्रिवेंट होता है, मतलब जी ट्रांसमिशन। बट ए सेलुलर में ओनली डिसीज प्रिवेंट होता है, पर वो ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज नहीं प्रिवेंट होता है। ओके ये राइट मेन डिफरेंस है उसका। जी जी सर। तो दोनों की अपनी अपनी एक खासियत है और दोनों का अपना अपना एक नुकसान भी है, राइट? एंड हाउ हैज द यूज ऑफ DTaP वैक्सीन और लेट्स से DTP वैक्सीन impacted the prevalence of the three conditions जो आपने अभी बताया हमें कि डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस से बचाते हैं? तो इनकी प्रेवलेंस पे वैक्सीन का क्या इम्पैक्ट है बच्चों में? हाँ, ये यूजुअली डिप्थेरिया एंड टिटेनस का तो प्रिवेंट मतलब 100% होता ही है। और जी पर्टूसिस में जब इम्यूनिटी डाउन होती है, अगर वैक्सीनेशन कवरेज लो होता हो, मतलब जी वैक्सीन कवरेज जब लो हो, तभी पर्टूसिस आउटब्रेक्स होते रहते हैं। जी तो ये मेनली इफ कवरेज वैक्सीनेशन होल कंट्री कवरेज इज लो, ऐसे राइट कोविड टाइम पे देखा गया था। तो जी कोविड टाइम पे जो 2 इयर्स प्राइमरी वैक्सीनेशन कवरेज इज वेरी लो, सो डीटीपी ओके वैक्सीन कवरेज भी कम हो गया था। तो जी उस टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड परटूसिस आउटब्रेक्स आर सीन हो रहे ओके थे। ठीक है सर। और अभी आपने हमें कुछ हद तक समझा भी दिया है कि 1 साल से छोटे बच्चों को हम 3 डोजेस देते हैं DTP वैक्सीन की। एक बार हमें आप रिकमेंडेड एजेस बता दीजिए कि किस उम्र के बच्चों को और कब तक ये DTAP वैक्सीन लगवाना चाहिए। व्हाट आर द रिकमेंडेड एजेस फॉर चिल्ड्रन टू रिसीव दिस पर्टिकुलर वैक्सीन? हाँ, डीटीपी वैक्सीन ऐसे पहले 6 वीक फर्स्ट डोज होता है, देन 10 वीक्स, देन 14 वीक्स, एंड जी आफ्टर दैट 1.5 ईयर पे बूस्टर डोज होता है। जी और बिटवीन 4 to 6 ईयर सेकंड बूस्टर होता है। जी और बाद में 10 मतलब 11 to 12 ईयर्स के बीच में टीडीएफ वो बूस्टर होता है। जी और एज ए adult also we have to take TDAP boosters every 10 years. ओके So we can prevent all pertussis in adult also. ओके राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये शायद उनमें भी थोड़ा सा हमें कैचअप करने में हेल्प करेगा जिनको बचपन में शायद ये वैक्सीन नहीं लगा होगा, तो एडल्ट हाँ। वैक्सीन वहां पे थोड़ा हेल्प करेगा, हम्म। राइट? अब जैसे आपने बताया कि कुछ वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स थी जिनकी वजह से DTAP भी आया, तो DTAP की भी आई एम श्योर कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। तो व्हाट आर द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ DTAP वैक्सीन और ये इंडिया में कितने कॉमन है? हाउ कॉमन आर दे इन इंडिया? 75 to 80% बच्चों में देर इज नो फीवर, पेन, रेडनेस कुछ नहीं होता है आफ्टर डीटीएपी। बट जी इन 20 अराउंड 20% चिल्ड्रन में कभी माइल्ड फीवर हो सकता है आफ्टर डीटीएपी, एंड जी मे बी पेन, रेडनेस ऑल्सो chance of occur after जी DTaP vaccines. And जी the serious side effects are very rare जी after DTaP. In one less than 1 per 100 case, there is a excessive crying for 3 hours, more than 3 hours maybe हो सकता है after DTaP. और high grade fever more than 105, मे बी सम केसेस 1% केस में हो सकता है। और जी दूसरा सीजर कन्वर्जन आ सकते हैं, वो भी लेस देन 1 इन 100 चिल्ड्रन। जी जी तो काफी मतलब वेरी फ्यू परसेंटेज।
जी, तो मोस्टली वैक्सीन सेफ ही है। हाँ वो तो सर जैसे, हाँ जी, तो सर जैसे आपने बताया कि अभी वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, तो जो पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को कैसे मॉनिटर करती है और इंश्योर करती है? सो हाउ डू पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, लेट्स से इन इंडिया, मॉनिटर एंड इंश्योर द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दिस DTAP or DTP vaccine? safety, usually there is a surveillance system in India, active and passive surveillance system. जी So mostly passive surveillance system more working in India. जी Uh, uh, we have to either private doctors or from government doctors and government जी hospitals who have vaccination centers. They have जी to give report to the AEFI committee होती है, जी जो एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमिटी, इसमें जी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल कमिटी. जी And जी so they have to submit if any serious जी AFI occur जी to this committee, and they evaluate this side effect, or they give final report that this is due to vaccine or just casual relation, final जी report. So जी this is one of the monitoring system about safety. And active surveillance system is ITSU, जो इंफॉर्मेशन इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है, वो जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में ये AEFI, मतलब एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का जी मॉनिटरिंग के लिए वो एक्टिव सर्वेलेंस में वर्क करता है. जी और कई बार वो जैसे कोविड टाइम पे होता है कि टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, जो उसने वैक्सीन लिया है उसको मतलब टेलीफोन से भी क्वेश्चंस मतलब पूछते हैं कि भाई आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ, क्या हुआ. तो दिस इज एक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग. जी एंड अदर थिंग इज इफेक्टिवनेस. तो इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन वो स्टडी से ही मॉनिटरिंग होता है. मतलब जी जैसे अभी रिसेंटली ये जो एक स्टडी पब्लिश हुई है कि सम मिथ्स इज देयर कि भाई कोविड वैक्सीन के बाद हार्ट अटैक्स का मतलब बढ़ गया है. जी बट जी recent study one is published that there is a that heart chances of heart attacks are more in unvaccinated people with COVID जी vaccine than जी vaccinated with COVID vaccine. तो जी ये मतलब बाई इफेक्टिवनेस स्टडीज, डिफरेंट जी स्टडीज. जी तो मतलब रिपोर्टिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये 3 लेवल्स पे हो सकती है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। जी और ओके कोल्ड चेन मॉनिटरिंग भी इम्पोर्टेंट है. जो जी अगर कोल्ड चेन मॉनिटर नहीं होता है, वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, तो जी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी वैक्सीन की. तो वो जी भी एक इम्पोर्टेंट मॉनिटरिंग जी सिस्टम है इसके लिए, ओके मतलब सेंट्रल लेवल पे ऑल ओवर इंडिया. जी सर, ठीक है। एंड आपने जैसे अभी, हमने अभी शुरुआत ही इस पॉइंट से की थी कि पेरेंट्स हमेशा एप्रीहेंसिव रहेंगे कि वैक्सीन से वो खुद ही डरते हैं, तो वो बच्चों को नहीं लेके जा पाते हैं। तो जस्ट फॉर देम, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू फॉलो द recommended vaccination schedule फॉर दिस पर्टिकुलर वैक्सीन? हाँ, अगर रिकमेंडेड एज पर रिकमेंडेड शेड्यूल हर बच्चे को वैक्सीन लेना जरूरी है. हम्म। अ, और अगर वो कोई वैक्सीन मिस हो जाती है मतलब जी शेड्यूल से, तो जब भी मतलब 1 और 2 मंथ के बाद जब भी पेशेंट को मतलब पेरेंट्स को फिर से उसको मतलब ये याद रहे कि भाई वो वैक्सीन डोज मिस हो गया है, तो तब भी आफ्टर 1 या 2 मंथ 6 मंथ कभी भी आके वो वैक्सीन लगवा सकता है. जो जी मिस डोज है तो उसका मतलब प्रोटेक्शन मतलब सेम रहेगा. अगर वो जी वैक्सीन नहीं लेगा,
तो मिस डोज का, तो मे बी डिसीज में अकर ड्यू टू दैट. जी. तो अगर मिस हो भी जाती है, so they can always contact their doctor. Right. So I'm going to summarize this session, sir. Like, as a healthcare provider yourself, how can you effectively educate parents about the importance of DTaP vaccines in protecting the infants and young children from these vaccine preventable diseases? For vaccine advocacy, जी sir. we can do vaccine advocacy through this type of interviews, जी sir. through Zoom, and videos, by making videos, जी sir. and published on social media like जी. Twitter, LinkedIn, and FB. And other is through posters जी. on our clinic, our notice board of clinic, through different जी sir. posters. जी And sir. other is by newspaper articles, जी. for writing newspaper articles for parents awareness about vaccines. जी So sir. these are the different methods for We can vaccine. make some difference. Uh, Right. Absolutely. So on that wonderful note, I really appreciate your presence with us today, sir. And I'm hoping that the enlightening information shared, it will be useful to many families. So thank you so much for joining us. It's really been a pleasure. Thank you. Thank you for giving the opportunity. Thank you, sir. And for more such informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates. डॉक्टर उपाध्याय का मैसेज बहुत सिंपल है कि वैक्सीन्स इंपॉर्टेंट हैं. अगर मिस हो जाती है, so be in touch with your doctor either by social media or regular call. Both are equally effective. At the end of the day, you are important and so is your child. Right, sir? Yes. Okay. Thank you so much. Thank you once again, sir. Thank you. Thank you.